Hi guys, good morning. Thought to take a live session, but I'm in Gujarat. So there's seems network issues. So early morning, I'm just recording it so that you can see this concepts quite clearly because it's a bit dicey if there's a network issues coming up in between to make you understand this concept. Now, ये concept जो है, it is a combination of cross sets what you have done earlier and your arbitrage, and that too in more of you can say more of bit of complex manner. ध्यान से सुनना ये क्वेश्चन है which I'm just solving it you today, and based on that I'll be giving you a question more to practice forward. A limited sum concepts, ये कोई ऐसा नहीं है जहां पे आपको ये varieties मिलेंगे, but these are very rare sums for the examination. So let's start. There is a word called triangular arbitrage. Now arbitrage refers to making risk-free gains, and यहाँ पे triangular refers to using three currencies. Arbitrage refers to making risk-free gains, and triangle refers to using three currencies here, and you will understand how we do it. So यहाँ पे let's understand what is the theory about the same. The process of converting one currency to another and converting it to a third currency and again converting back to the original currency is called triangular arbitrage. It says that process of converting one currency to another, converting it to a third currency and converting back to original is called triangular arbitrage. In simple words, we compare cross currency quotes of any two rates and compare it with the third. If there lies a difference, the arbitrage gain exists. Don't go with the theory as of now. यहाँ पे ध्यान से सुनो. Sir, can I say that if a currency is quoted in multiple currencies been quoted in multiple countries, every market may there might be a slight difference in a quote if I route through another currency, and if I can identify that small एक दो पैसे का gap, that might be my arbitrage gain. Now to explain you the same, you need to use a example or a sum. That is how you can understand better. हमने ऐसे variety का sum किया है. This is like a triangular way of doing it. That is a technical term used. हमने ऐसा sums किए हैं, but I'm just re-ensuring it. How does it actually happen? Now question है कि there are spot rates in three markets. $1 59.25 and 59.35 in Mumbai. Pound 1 102.5 and 103 rupees in London, and pound 1 $1.70 and $1.72 in New York. तो कहने के लिए there are three quotes available: Mumbai, London, New York. अब quote 1 is in Mumbai market of dollars with rupees, quote 2 is in London market pound with rupees, and quote 3 is in New York market pound with dollars. ठीक है. Explain whether arbitrage gain is possible if he has 10 million pounds. Very importantly, what is the currency you are playing with is dollars here. तो can I say that कि डॉलर्स का कोड एक तो अवेलेबल है डायरेक्टली, दैट इज डॉलर विथ रुपीज इन मुंबई, ये अवेलेबल है. ठीक है. नाउ आई कैन ऑल्सो फाइंड अ डॉलर विथ रुपीज का कोड बाय यूजिंग दिस टू कंट्रीज का मार्केट जो रुपीज विद पाउंड्स है और एक डॉलर्स विद पाउंड्स है. तो डॉलर्स विद पाउंड्स एंड रुपीज विद पाउंड्स, रुपीज विद पाउंड्स, डॉलर्स विद पाउंड्स. तो बेस्ड ऑन दैट दोनों जगह पाउंड कॉमन है, तो मुझे यहाँ पे कौन सा करेंसी मिल जाएगा? रुपीज विद डॉलर्स मिल जाएगा. मतलब लंदन न्यूयॉर्क मार्केट का क्रॉस रेट ढूंढ के दैट इज द अपॉर्चुनिटी विथ मी टू फाइंड व्हाट अ रेट बिटवीन रुपीज एंड डॉलर्स थ्रू लंदन न्यूयॉर्क मार्केट. और वो रेट जो होगा उसे मैं कंपेयर करूंगा मुंबई के रेट से. और अगर मुंबई के रेट में और उस दोनों के रेट के कन्वर्शन में कुछ ना कुछ डिफरेंस आ जाता है, तो उसी को मैं कहूंगा मेरे लिए आर्बिट्राज गेन होना. और मेरे पास अगर $10 million है टू ट्रेड विथ, तो मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूं क्या मैं कितना गेन कर सकता हूं. आइए जानते हैं गाइस. इसके लिए पहला एक तो अपने पास डायरेक्टली कोड अवेलेबल है मुंबई का. दूसरा हमें इसका क्रॉस रेट ढूंढना है. क्या ढूंढना है? क्रॉस रेट. तो मुझे क्रॉस रेट किसका ढूंढना है? रुपीज बाय डॉलर्स. यस सर, $1 इज डैश रुपीज इन द अदर टू, उसका ढूंढना है.
और मेरा RHS में क्या है, रुपीज विथ पाउंड्स, दूसरा क्या है, डॉलर्स विथ पाउंड्स। तो आपके LHS में है रुपीज विथ डॉलर्स और आपके RHS में रुपीज विथ पाउंड्स एंड डॉलर्स विथ पाउंड्स। अब आप देखोगे तो मेरे को LHS में डॉलर्स डिनोमिनेटर में चाहिए और रुपीज न्यूमरेटर में। अगर आप यहाँ पे देखो तो मेरा रुपीज न्यूमरेटर में ऑलरेडी आ चुका है, बट आप देखोगे तो मेरा डॉलर भी कहाँ पे है, न्यूमरेटर में है। लेकिन मुझे टू यूज माई क्रॉस रेट थ्रू एन इक्वेशन, मुझे डॉलर्स को कहाँ डालना है, डॉलर्स को डिनोमिनेटर में। इसको करने के लिए मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, इनवर्स। क्या करना पड़ेगा, इनवर्स। और इसे इनवर्स करूंगा तो मेरा पाउंड ऊपर आ जाएगा और पाउंड पाउंड नॉलिफाई होके माई कोड विल बी व्हाट, rupees with dollars. It means that I can get the equation what I want by inversing dollar by pound. इसको इन्वर्स करूंगा तो वो मिल जाएगा, तो मेरा इक्वेशन रेडी होगा। अब यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे दो कोड्स अवेलेबल है। हमने देखा है कि अगर मैं सेल लूंगा तो ये भी सेल होना चाहिए और ये बाय तो ये भी बाय होना चाहिए। ये नॉर्मल प्रोसीजर है। लेकिन अगर आपने इन्वर्स किया है तो जहां पे आपने इन्वर्स किया है उसमें आप उल्टा रेट यूज करोगे। आइए देखते हैं। 102.5 ये सेल है तो ये 105 पर लिखा, और नॉर्मली क्या होता है यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई करता 1.70 से ही। लेकिन जैसे ही यहाँ पे इनवर्स हुआ है, ये कोड इनवर्स हुआ है, तो मैं यहाँ पे इंस्टेड ऑफ यूजिंग 1.7 मैं क्या यूज करता हूँ 1.72 और इनवर्स होने से डिवाइड। तो 102.5 इंटू 1/1.72 इज माई दिस रेट एंड 103 इंटू 1/1.70। 103 के लिए ये यूज नहीं करूंगा, बाई बाई नहीं होगा यहाँ पे, बाई एंड ये उल्टा सेल, क्योंकि ये इन्वर्स हुआ था, ये कोड इन्वर्स हुआ था। ये हो गया आपका 60.58। अब यहाँ पे आप समझो ये 102.50 इंटू 1.1 इंटू 1/1.72 इज 59 पॉइंट समथिंग। अगर इफ आई कीप इट इन 4 decimals द सेम वैल्यू, keeping the same in 4 decimals is going to give me 59.5930 to be precise, 59.5930 to be precise, और ये आता है आपका 60.58 somewhat। अब मेरी बात सुनना ध्यान से गाइस, मैं एक बार ये रिपीट करता हूं, ये जो क्रॉस रेट्स होते हैं ये हमने बहुत बार किए, मैं वापस रिपीट कर रहा हूं। टू यूज द क्रॉस रेट्स हियर मुझे इसे इन्वर्स करना था। इसको इन्वर्स करना जैसे ही मैं कर रहा हूँ मेरा इक्वेशन रेडी हो जाता है। इन्वर्स करने के लिए मुझे फाइनली क्या करना है, 102.5 के साथ ये रेट नहीं, 102.5 इन्वर्स करके ये रेट यूज करूंगा, और 103 के साथ कौन सा रेट, ये रेट नहीं, इसको इन्वर्स करके रेट यूज करूँ, तो आपको आंसर ये आए। अब ये एक्चुअल आंसर आपका है वो है 59.5930, बट सिंस डेसिमल्स में था तो 2 रखा है, तो देयर विल बी अ राउंडिंग ऑफ डिफरेंस, दैट्स व्हाट आई वांटेड टू से यू हियर। हमने टू वे कोड रुपीज और डॉलर्स का ढूंढ लिया थ्रू विच मार्केट्स, लंदन एंड न्यूयॉर्क मार्केट। हमने लंदन मार्केट को और न्यूयॉर्क मार्केट को अच्छे से यूज किया और हमें क्या मिल गया, रुपीज डॉलर का रेट मिल गया थ्रू दैट मार्केट। नाउ फॉर आर्बिट्राज we can compare the rates of dollars in Mumbai market and your cross rate computed above, that is through London market and New York market। अगर आप ध्यान से देखो तो ये आ रहा है रुपीज 59.359 एंड 60.58, और ये है आपका क्रॉस रेट का आंसर जो हमने ढूंढा, और ये है आपके मुंबई का मार्केट। अब आपके पास अभी क्या है, नाउ यू हैव विथ यू डॉलर्स, तो आपको डॉलर्स बेचना है और वापस खरीद लेना है, और उसमें आप क्या कमा रहे हो देखना है। तो आप डॉलर्स को बेचोगे कहां पे, बट नेचुरली अगर आपने मुंबई में बेचा तो आपको 59.25 आएगा, और अगर आपने वाया 2 कंट्रीज के मार्केट से बेचा तो आपको कितना आएगा, 59.59, एंड टू बी प्रिसाइज विदाउट राउंडिंग ऑफ 59.5930। आप चेक कर सकते हो आपका कोड कौन से लेवल के लिए, इसके लिए 102.5 इंटू 1.17 डिवाइड बाय 1.172, ये आपका 59.5930 आएगा। तो एनीवेज अब ये 59.59 पे बेचोगे इन दैट क्रॉस करेंसीज, एंड फाइनली आप यहाँ पे, वहां पे बेचा है तो यहाँ पे नहीं बेच पाओगे, फिर यहाँ पे खरीदोगे एट व्हाट रेट, 59.35। तो कैन आई से दैट आपने कहाँ बेचा, इन योर अदर टू, लंदन न्यूयॉर्क के वाया बेचा 59.35 59.59 पे, और कहाँ खरीदा, मुंबई में
at 59.35. तो 59.5930 मैंने कहा टू बी स्पेसिफिक, और 59.35 पे खरीदा। तो फाइनली अगर मैं 4 डेसिमल्स को स्पेसिफिकली यूज करता हूं तो मेरा गैप जो आ रहा है वो 59.5930 minus 59.35, that is 0.23. So ये 59.5930 and 59.35, you will have some a pause section here, but I was just identifying this number through calci. However guys, ये 0.23 नहीं है, there is a small typing error here. It is, if you have assessed it, it is 0.243. It is 0.243. That is, here you will be having it 0.243 का answer instead of 0.23. So you will be using it 2,43,000 in that situation. That is, just a second, just use your calculus everyone. 5.59, 59.59, 59.5930 minus 59.35 into 10 lakh करना, you will be having 2,43,000. तो ये जो अमाउंट है ना वो 2,43,000, इट्स अ टाइपो एरर हियर, डिवाइडेड बाय 59.35 and you'll be getting 4094. आंसर रिमेन्स द सेम, जस्ट वहां पे टाइपिंग एरर हुआ है. ये आपका 2,43,000 है ये. आई होप दैट इज क्वाइट क्लियर. 2,43,000. तो यहाँ पे ये 0.243 हो जाएगा. आप कैलसी पे यूज कर सकते हो. जो 2.43 इंटू 10 लाख, दैट इज 2,43,000. और ये 2,43,000 डिवाइड बाई पॉइंट, ये 2,43,000 जो गेन आया. नाउ जस्ट लेट्स कम बैक टू अवर नॉर्मल पार्ट. 2,43,000 का जो गेन है वो रुपीज में गेन है. अब ये रुपीज के गेन को अगर आपको डॉलर्स में दिखाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको डॉलर की करेंसी से इक्वेट करना पड़ेगा. तो आप मुझे बताओ, आप जब वापस खरीदोगे डॉलर्स को, तो बट नेचुरली आपने बेचा है कौन से मार्केट में, आपने बेचा है इन क्रॉस मार्केट. तो आपको खरीदना ये मार्केट से है. तो क्या रेट से खरीदोगे, 59.35. तो कैन आई से दैट 2 लाख, आपको जो मैंने अमाउंट बोली थी वो दैट इज 2,43,000 डिवाइडेड बाय 59.35 कम्स टू हाउ मच, $4094. नाउ दिस $4094 जो है वो क्या है, दिस $4094 is your arbitrage gain in this entire situation. अब यही आर्बिट्राज गेन में हमने किया क्या, हमने क्रॉस रेट ढूंढा. क्रॉस रेट से जो हमें आंसर आया वो था 59.596 एंड 60.58. इसको मैंने राउंड ऑफ किया है. टू बी प्रिसाइज ये 59.5930 था और ये आ गया आपका मुंबई का रेट. तो आपके पास ऑलरेडी क्या थे, डॉलर्स थे. तो आप कौन से रेट पे बेचोगे, आपके पास ऑलरेडी है ना, तो फर्स्ट आप सेल करोगे. जस्ट फॉर एक्सप्लेनेशन पर्पस, 59.5930 पे बेचा और 59.35 पे खरीदा. तो आपको 0.243 का, आपको 0.243, यहाँ पे 4 नहीं लिखा है बीच में, 243 का गेन आ रहा है पर डॉलर. ये 2.243 क्या है, रुपीज है. 2.243 रुपीज पर डॉलर, और 10 लाख डॉलर के हिसाब से वो 2,43,000 हो रहा है. और जब मैंने उसको कन्वर्ट किया डॉलर्स में बाय परचेजिंग एट 5.95.35 पे आपने परचेज किया डॉलर्स, तो फाइनली यू अराइव एट $4094. ये आपका गेन है. अब इसी को मैं आपको वापस समझाता हूं इन अ प्रोसेस कॉल्ड आर्बिट्राज प्रोसेस.
ध्यान देना, आपके पास क्या है, डॉलर्स है 10 लाख, उसको आप देखो ध्यान से, उसको आप न्यूयॉर्क की मार्केट में फॉर क्रॉस करेंसी न्यूयॉर्क की मार्केट में बेचने जाओगे और क्या लेकर आओगे, पाउंड्स। पाउंड्स आपके पास आने के बाद आप पाउंड लंदन की मार्केट में पाउंड को बेच क्या लेकर आओगे, रुपीस, और रुपीस को मुंबई की मार्केट से बेच के क्या खरीदोगे, डॉलर्स। देखो मैंने यहाँ पे क्या बोला है, डॉलर्स को बेच के आप पाउंड्स खरीदोगे, यू विल बी बाइंग पाउंड्स आफ्टर सेलिंग डॉलर्स, बाय सेलिंग पाउंड्स यू विल बी बाइंग रुपीस, and by selling rupees you will be buying dollars. This is the actual arbitrage process practically. तो डॉलर्स को बेच के पाउंड खरीदो, पाउंड्स को बेच के रुपीस, और रुपीस को बेच के डॉलर्स। आइए समझते हैं। अब आप डॉलर्स के बेच के जब पाउंड खरीदोगे, आपको क्या ध्यान में रखना है, टू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू पिक अप द रेट्स। चेक व्हाट आर वी डूइंग विद द करेंसी, द कोट अवेलेबल, and we buy at high rate and sell at cheap rate. आप ध्यान रखना, what are we doing with currency on LHS। जब आप डॉलर्स को बेच रहे हो, जब आप डॉलर्स को बेच रहे हो, करेंसी जो LHS में क्या है, पाउंड है, उसको आप क्या कर रहे हो, खरीद रहे हो, खरीद रहे हो। तो विच रेट विल बी एप्लीकेबल टू यू, हायर रेट 1.72। जब आप पाउंड्स को बेचोगे तो विच कोट इज अवेलेबल, पाउंड का ही कोट है और पाउंड को बेच रहे हो तो कौन सा रेट अवेलेबल होगा, 102.50। अब आपके पास रुपीज है और आपको क्या कौन सा कोट अवेलेबल है, डॉलर्स का, डॉलर्स को आप क्या करना चाहते हो, खरीदना। क्या रेट एप्लीकेबल होगा, 59.35। तो हियर आई एम जस्ट मेकिंग यू अंडरस्टैंड द रेट्स एप्लीकेबल विल बी 59.35, 102.5 एंड यहाँ पे 1.72। ये आपको और प्रैक्टिस करना है। आई एम श्योर आपको याद आया होगा। दो चीजें याद रखो, कौन सा कोड एलएचएस में है, उसको आप क्या कर रहे हो, खरीद रहे हो या बेच रहे हो, ये इंपॉर्टेंट। नंबर 2, खरीदोगे सस्ते में, नहीं खरीदोगे महंगे में और बेचोगे सस्ते में। अब आइए नीचे जाते हैं। अब आपके पास क्या है, 10 लाख डॉलर्स है। अब आपने डॉलर्स को बेचा और आपके पास जो मार्केट है, उस मार्केट में आप सी द मार्केट व्हाट यू हैव न्यूयॉर्क मार्केट। अब इस न्यूयॉर्क मार्केट में आप क्या करोगे, आप पाउंड्स को खरीदोगे। तो 10 लाख डॉलर्स को बेच के आप क्या खरीद रहे हो, पाउंड्स। आप क्या खरीद रहे हो, पाउंड्स। तो बाय सेलिंग 10 लाख डॉलर्स एंड पाउंड को खरीद रहे हो, तो यू विल बी बाइंग पाउंड एट 1.72। तो बाय सेलिंग 10 लाख डॉलर्स at a rate of 1.72, I'll be arriving at 5,81,395 pounds. Now 581,395 pounds का मतलब होता है कि I am buying pounds at 1.72 and that is costing me 10 lakh dollars. तो यहां पे आपने क्या किया, डॉलर्स को बेच के क्या खरीद लिया, पाउंड्स। Now what do you have with you? You have with you is what, pounds. You have with you is what, pounds. नेक्स्ट, अब ये जो पाउंड है आपके पास, ये जो पाउंड है आपके पास, उसको बेचना है। तो आप बेचोगे कौन से रेट पे, 102.5 पे। अब जब आप 581,395 पाउंड बेचोगे एंड कन्वर्टिंग इनटू रुपीज, दैट इज बाइंग रुपीज, लेकिन आप पाउंड आपका कोट है और कोट को क्या करे हो, सेल, तो 102.5। तो आपके पास कितना रुपीज आया, 595.92 987 रुपीज आया। अब ये 595.92 890 रुपीज से मुझे फाइनली क्या करना है, मेरे पास जो करेंसी पहले था ओरिजिनल करेंसी, उसे बाय आउट करना है। तो मैं कौन से रेट पे डॉलर खरीदूंगा, तो वो आता है आपका 59.35, क्योंकि डॉलर का कोट है और विल बी बाइंग एट हायर रेट। उससे आपको जो आंसर आया वो क्या आया, फाइनली जब आपने वापस आपकी ओरिजिनल करेंसी खरीद ली तो आपके पास 10,04,094 डॉलर्स आ जाते हैं। आपने कितने बेचे थे, जो आपके पास ओरिजिनली थे 10 लाख, वापस कितने आए, 10,04,094। तो ये आम तो क्या बचा, 4,094 डॉलर्स। दिस इज बेसिकली योर आर्बिट्राज गेन। अगर आप ध्यान से देखो तो आपका आर्बिट्राज गेन डॉलर्स में क्या था, 4094 ही था। और यहाँ पे भी क्या आ रहा है, 10 लाख 4,094 एंड 10 लाख 4094। मैंने राउंडिंग ऑफ
क्यों नहीं किया? क्योंकि मुझे आपको ये समझाना था प्रैक्टिकली भी। ये है इसका प्रैक्टिकल पार्ट। I will always expect this to be done this way. You know why? Because it may sound difficult sometimes if the data are not good. And यहाँ पे this is logical method which you have to think this one. But on the exam day, it's very good if you don't think and you can do it just mathematically. So I will expect both the codes to be done. Both the methods are better, but I will always prefer कि आप practice करो दोनों से अभी, and then finally come to which method? The cross rate का formula method here. If I move forward here, guys, आपको पहले I just want to identify again to you all कि ये मीनिंग क्या कहता था? The process of converting one currency to another currency. That in this example it was dollars to pounds. Converting it to other currency, that is pounds to rupees, and again converting back into original currency, that is dollars, is triangular arbitrage. I hope that is you are getting it now. In simple words, we compare cross currency quotes of any two rates. जो क्या था यहाँ पे पता है? Rupees and dollars का basis था, and compare it with the third if there lies a difference to arbitrage gain. मतलब मैंने रुपीज और डॉलर्स को क्रिएट्स लंदन और न्यूयॉर्क को कंपेयर किया विद मुंबई और देखा क्या मुझे गेन हो रहा है या नहीं हो रहा है. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस सम. आई वॉन्ट यू के आई नेवर वॉन्टेड कि इसमें कुछ डिस्टर्बेंसेस आए. अब आपको ये चीज को साथ में लिखनी है. ये एक सम ही एक मैराथन सम है विच इज क्लियरिंग ऑल द बेसिस टू योर ट्रायंगुलर आर्बिट्राज. इट्स लाइक अ क्रॉस रेट सम with a flavor of arbitrage, a cross rate sum with a flavor of arbitrage, to be very simple. अब ये चीज है, मैं आई जस्ट रिपीट इट. ये कोट आपके पास डॉलर्स थे, डॉलर्स का कोड रुपीस के साथ ऑलरेडी यहाँ पे है, और एक और डॉलर कोड आपको चाहिए ये जानने के लिए कि जब डॉलर को मैं बेचूं तो क्या मुझे गेन होगा अगर मैं बेच के करेंसीज को चेंज करते करते वापस जब डॉलर्स को खरीदूं तो मेरा 2 पैसा बचे. इज इट पॉसिबल और नॉट? तो हमने क्या किया, हमने रुपीस और डॉलर का जो मुंबई में कोड अवेलेबल था वैसा ही कोड एक और ढूंढा वाया लंदन न्यूयॉर्क मार्केट. कैसे? तो लंदन की मार्केट, न्यूयॉर्क की मार्केट में डॉलर्स को बेच के पाउंड खरीदा, लंदन की मार्केट में पाउंड को बेच के रुपीस खरीदा, और रुपीस को मुंबई की मार्केट में बेचकर फाइनली हमने डॉलर्स खरीदा. मैं मेरे शब्द रिपीट कर रहा हूं. न्यूयॉर्क की मार्केट में डॉलर्स को बेच के इस रेट से पाउंड खरीदा, फिर लंदन की मार्केट में पाउंड को बेचकर इस रेट से रुपीस लिया, और रुपीस को मुंबई की मार्केट में बेचकर हमने वापस डॉलर्स लिया. और उसी के अंदर आपका ये मैकेनिकल मेथड ऑफ गेटिंग 4094, and this is your procedural method to get 4094. I hope you are very clear with this. This week I was on a break, but still I wanted कि मैं आपको ये कराऊं. I'm not in Mumbai, but I will again come back. In case if you have a doubt, मैं इसको वापस live करवाऊंगा. तो just inform me back very fast, guys, in case there's an issue. I don't want to take a chance with this kind of a concept. ठीक है? I'll see you next class. Take care.